Morning kids. Let's start the new topic. And what is the name of the topic is skeleton. First watch the video carefully to understand the skeleton and the different type of bones which are present in our body. So let's start. Today's topic, skeleton. Oh, this road is so dark and lonely. Yes. Are you scared? Oh, I'm never scared. Ghost! You said you're never scared. This is just a human skeleton, a model of human bones, maybe from school laboratory. See, let me make him stand. Oh, it looks like a human without skin and other organs. Yeah, these are just bones. Let me talk to him. Hey, how are you? Jimmy, he does not have any muscles like tongue, so he can't speak. But can you tell me about him? Yes, this provides support to our body. How? See it by magic. Jimmy, can you see this shirt in a hanger? Yes. Let's see. If we remove the hanger, what happens? Shirt falls down if we remove the hanger. See, if bones don't stand up, our body would be like a lump of mud. Also, it saves our heart and lungs from any damage. Yes, you are right. Skeleton supports our body. It protects our body organs. How many bones are there in our skeletal system? Oh, there are 206 bones. But when a child is born, it has approximately 300 bones. But when you grow up, few of the bones join together. Human skeleton has 206 bones. Let me show you something. This is called skull. It carries our brain and supports our face. Let's learn about other bones. Oh, these are shoulder bones. Yeah, you're right. These are called clavicle. We also call them collar bones. That is why part of the shirt at this point is called collar. Clavicle, collar bones. See, he is showing something. This is sternum. This is central bone at the front. What is this cage-like thing? It is made of many bones. It is called rib cage. Our heart and lungs are behind these bones. So, if anyone hits at your chest, this rib cage would protect your heart and lungs. Let me show you. Ouch! See, nothing happened to your lungs and heart. I am still breathing and my heart is still beating. Ribcage protects heart and lungs. What is this bone? This is called humerus. Now see this. Touch your back. There is no bone here. Oh, it is not a single bone. It is made of 33 small bones. It is called spine. It starts from the bottom of the brain and ends at the start of the bump. Ha 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 ha. Spine is made of 33 small bones called vertebrates. Which bone is this? There are two more big bones in the arm. These are called ulna and radius. Ulna, radius. Oh, this is called pelvis. It protects bladder and uterus. Pelvis, it is the largest bone. It seems to be the longest and strongest bone of the body. You're right. This is femur.
This is the longest bone in the body. Femur, longest and strongest bone in the body. Which are these bones? These are tibia and fibula. Hey Jenny, can you tell me which is the smallest bone in the body? Do you know? The smallest bone in our body is in the ear. It is called stirrup. Stirrup bone in the ear is the smallest bone. Oh, there are so many names. Let me note all down. Let me show you something. Do you know bones are made of which thing? Oh yes, calcium. You're right. For strong bones, you need calcium and vitamin D. See by magic. And you get calcium from milk. Yes, and you can get vitamin D from fish. And you know, we should spend a lot of time in the sunlight. Now my bones will be strong. Now let's walk in sunlight. Yeah, sun gives us free vitamin D. Oh, yes. For strong bones, take milk and fish. So walk in sunlight. So students, I hope you all understand the topic skeleton and you like the video. So I am explaining by giving some examples. Students, what happened if you had no bones in your body? Well, if we had no bones in our body will be shapeless like this. आपकी body कैसी होगी बेटा? Shapeless. So, you see, bones are very important part of our body because they provide us shape, they provide us structure, therefore they are very important part of our body. Now, you know, not only human body, everything require structure. Look at this house. Can you see this beautiful house? But this beautiful house has also structure. Look at the structure of this beautiful house. You can see here that is made up of iron. So it has strong iron rods. It is made up of strong iron rods. So this is the structure and this is very strong and sturdy from inside. So when you see inside, you can see there is a basic structure that is made up of iron rods on which this beautiful house is built. Now I am giving you next example, showing you one car. Look, the red car, that is also very beautiful and very strong car. So you can see car has a very strong structure inside it. Look at the internal structure of the car. So which can protect the all internal machinery or all other parts of the car. So this is the internal structure of the car. This is also made up of different type of machines and look at the car now. So it means everything require structure, and in the similar way our body is also made up of different type of bones and therefore they are giving us structure, they are giving us support, and with the help of this structure we can walk, we can stand, we can jump, and this is called skeleton and skeletal system. So how many bones are present in our body? So you can see there are, I already shown you video, there are how many bones in an adult human being? 206 bones. What are they called? 206 bones. Look, our body have very delicate parts. Now look at the different skeleton system, different 1, 2, 3, 4. I am showing you 4. Both are the 4 are same. So now look at the 3D skeleton system. There are different bones which are present in our body, hand,
then legs, then ear, then skull. So these are different skeletal system. Now look at this picture. Look at the different internal organs which are present in our body, and these all are covered with the help of skeletal system. ये सारे किससे बेटे कवर हुए हैं? हमारे हड्डियों के ढांचे से, जिसको हम skeleton system कहते हैं. skeletal system हम उसे कहते हैं. Now look, you can see the different parts here which are covered by our bones. So now you understand that how this skeletal system help us and protect our internal organs. So they are giving some sort of protection. So I am showing you the next your book, and I am explaining the topic with the help of book. Now let's see. Now let's start reading of this. So I am taking my pen first so that I can underline the important things. If human did not have bones, अगर human यानी हम लोगों के पास bones नहीं होती तो we would be floppy like a puppet. जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया, हम कैसे दिखाई देंगे? like a puppet. Unable to walk, हम चल नहीं पाएंगे, और even stand up on our own, और कभी खड़े भी न हो पाएंगे. हम चल पाते हैं, जंप कर पाते हैं, हम खड़े हो पाते हैं with the help of these bones. The framework of different type of bones, you can see different type of ways. I already shown you in the video different type of bones. So these different type of bones framework is called skeleton. यानी अलग अलग हड्डियों के ढांचा जब मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं, जैसे आपका फ्रेम होता है ना जिसमें आप अपनी फोटो लगाते हो, तो आपका बॉर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम. तो आप कहते हैं मैम इन दिस फ्रेम लुक एट माई पिक्चर, दैट इज इन माई फ्रेम. ये फ्रेम के अंदर मेरी पिक्चर लगी हुई है. सिमिलरली द गॉड हैज गिवन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स विच टुगेदर मेक योर स्केलेटन. जो मिलकर क्या बनाती हैं बेटे? हड्डियों का ढांचा, जिसकी वजह से हम खड़े हो पाते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं. एंड फॉर्म आर स्केलेटल सिस्टम. देखो बेटा यहाँ पे फर्क देखो, स्केलेटन के साथ कभी सिस्टम नहीं लगाते. जब ये सारी हड्डियाँ अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स जब मिल जाती हैं और एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बना देती हैं, तो हम उसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम. नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन. द स्केलेटन के क्या फंक्शन है, इसका क्या यूज है? फर्स्ट दे फॉर्म ए फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. वो एक ऐसा ढांचा बना देते हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं. सेकेंड, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इंजरी टू द इंटरनल ऑर्गन्स. आपने वीडियो में देखा कि आपका हार्ट, आपके लंग्स जो हैं वो कवर हैं विद दिस रिब केज. ये जो रिब केज आपको दिखाई दे रहा है, इसने प्रोटेक्ट कर रखे हैं. सो उससे क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हमारी जो बोन्स हैं वो क्या करती है बेटे? प्रोटेक्ट आर इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे को इंजरी यानी चोट नहीं लगती. आपने देखा था ना वीडियो में, द गर्ल पुशेस द बॉय, या आपको कोई पुश कर दे, आप जैसे अभी स्कूल में भागते थे या रास्ते में कहीं गिर जाते हो या घर में कहीं गिर जाते हो, तो आपके हार्ट या लंग्स पे तो कुछ नहीं होता ना, बिकॉज देयर इज अ रिब केज. एक पिंजरे की तरह बोन्स बनी हुई है जिसने आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रखा है. नाउ कम टू नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट. हम हमेशा जब भी हम बाइक पे या स्कूटी पे जाते हैं या आपके पापा जाते हैं, तो आप हमेशा देखते हो वो हेलमेट लगाते हैं. हेलमेट क्यों लगाते हैं? टू प्रोटेक्ट आवर दिस हेड. हमारे सिर को बचाने के लिए हम एक हेलमेट डालते हैं. लेकिन यू नो, गॉड ने हमें एक नेचुरल हेलमेट दी हुई है जिसको हम बोलते हैं स्कल, जो आपके हेड के यहाँ पे है. स्कल, स्कल का मतलब जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. बेटे स्कल बहुत हार्ड होती है. व्हेन यू टच योर हेड, आप अपने हेड को आप टैप कर सकते हो, ऐसे ऐसे करो, हाथ लगाओ और जोर जोर से ऐसे करो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्कल बहुत हार्ड होती है. और उसने किसको प्रोटेक्ट कर रखा है? आपके डेलिकेट ब्रेन. ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, तो यहाँ पे स्कल जो है, जो हड्डियों का ढांचा स्कल का है, उसने किसको बेटे प्रोटेक्ट कर रखा है? ब्रेन को. नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन. द बॉडी पार्ट्स दैट बैंड आर नोन एज जॉइंट. आपने देखा होगा, आप अपनी आर्म्स को अप डाउन करके देखिए, आप अपनी लेग को सीधा और मोड़ कर देखिए, तो वहाँ पर क्या होते हैं? हमारी कलाई, जिस पे हम वॉच लगाते हैं, यहाँ जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती है ना बेटे, उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स. क्या बोलते हैं? जॉइंट्स.
तो बॉडी पार्ट दैट बेंड, जो बॉडी के हिस्से हमारे बेंड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं जॉइंट। तो जॉइंट इज द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। अगर पेपर में आए जॉइंट क्या होते हैं, तो सिंपल आंसर है मैम, जॉइंट एक ऐसी जगह है हमारी बॉडी में, एक ऐसा जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं। वी यूज डिफरेंट जॉइंट्स, हम अलग अलग जॉइंट्स को यूज करते हैं टू मूव द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये बेटे अलग अलग होते हैं, यानी कि एक ही तरह के जॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने हैंड मूवमेंट करनी है तो उसके जॉइंट्स अलग है। अगर आप लेग मूवमेंट करते हो, अप डाउन करते हो, आप लोग जंप करते हो, वहाँ पे आपके डिफरेंट जॉइंट्स हैं। आप किसी चीज़ को पकड़ कर, जैसे होता है ना डंबल करना, वो आप कर सकते हो, दैट इज आल्सो जॉइंट्स। आप हाथ को मूव कर सकते हो, आप अपने फीट्स को मूव कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, that is called muscular. So first I am explaining with the help of this book, then I will show you some video in the next class. All the muscles together, जितने भी बेटे हमारी बॉडी में मसल्स हैं, वो सब जब मिल जाते हैं तो हमारा बनता है मस्कुलर सिस्टम। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स इन द बॉडी। देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ बोन्स की बात करूँ तो बोन्स तो बहुत हार्ड है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर वहाँ पे मसल्स ना होते बोन्स के साथ, तो क्या बोन्स आप मूव कर पाते? वो तो ऑलरेडी बहुत हार्ड है, वो तो बहुत ही ज़्यादा स्टडी हैं, बहुत सख्त हैं, उसको मूव करना बहुत मुश्किल था। तो हम चल भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते, अपने आप को झुका भी नहीं पाते, बेंड भी नहीं कर पाते, लेट भी ना पाते। तो इन सब चीज़ों को हम क्यों कर सकते हैं? ड्यू टू मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि वो अलो करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं टू मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आप नेक को मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो। ऑल मसल्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू। जैसे आप लोगों के घर में रबड़ बैंड होता है ना, रबड़ बैंड को आप जितना मर्जी खींच लो, ये वापस उसी जगह पे आ जाता है। सेम गॉड हैज गिवन अस मसल्स दैट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू की तरह बने होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल टिश्यू फाइबर मेक अप ईच मसल, यानी हर मसल को बनाने में थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल टिश्यू जो फाइबर होते हैं, वो जब मिलते हैं तो मसल बनता है। मसल्स इन द बॉडी आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बहुत अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं। दैट इज़ नॉट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन दिस क्लास, क्योंकि ये बड़ी क्लास का है। व्हेन यू विल बी इन क्लास 4 और 5, आगे जब आप जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स भी हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इस क्लास में आपको ये ध्यान रखना है कि मसल्स का रोल क्या है। आपकी बॉडी के हर पार्ट को बेटे मूव करने पे मसल ही आपकी हेल्प करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मस्कुलर सिस्टम। क्योंकि बोन्स क्या होती हैं, अगर हम खाली बोन्स ही होती, गॉड गिवन दे देता, बोन्स का स्केलेटन सिस्टम उन्होंने हमें दे दिया, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, तो खाली बोन्स से हम चल तो नहीं सकते ना बेटे। बोन्स तो ऑलरेडी हार्ड होती, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। तो गॉड ने हमें क्या दिया? मस्कुलर सिस्टम। क्योंकि मस्कुलर सिस्टम किस तरह बना हुआ है? एक इलास्टिक टिश्यू, एक रबड़ बैंड की तरह, जिसे हम जितना खींचे वापस वो वैसे ही आ जाता है। सो आई विल शो यू वीडियो अबाउट द मस्कुलर सिस्टम इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, रीड दिस टॉपिक केयरफुली। आपका जो ये पूरा टॉपिक है, इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से लेकर बेटा ये सब याद कर लेना, लाइक कितनी बोन्स हैं, 22 इंटरनल ऑर्गन्स हैं, 600 मसल्स हैं, 206 बोन्स, 100 ट्रिलियन सेल्स। और उसके बाद ये भी आपको याद होना चाहिए, सेल जब इकट्ठे होते हैं टुगेदर दे मेक टिश्यू, देन टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। फिर हम आए थे स्केलेटन पे, जो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स देख रहे हो, शोल्डर जॉइंट, एल्बो, बैक बोन, नी, लिम्स, एंकल। देखिए कितनी तरह की बोन्स हैं, और सब के अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रखा है। तो इन बोन्स की हेल्प से ये हमें क्या मदद करती है? पहला, इट सपोर्ट द बॉडी, इसकी वजह से हम चल सकते हैं, आप रन कर सकते हो, आप चल सकते हो, आप खड़े हो सकते हो सीधे। दूसरा, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। और उसमें जो सबसे ज़रूरी, लुक एट द स्कल, ये होती है बेटे हमारी स्कल, जिसने हमारे ब्रेन को कवर किया हुआ है, एंड इट इज़ वेरी हार्ड। जब आप गिरते हो तो गिरने से आपके यहाँ ज़रूर दर्द होता है, इवन ब्लड भी बहुत कम आता है यहाँ पे, आपको दर्द होता है, आप सिर पकड़ के ऐसे बैठ जाते हो, मैम बहुत पेन हो रही है, कुछ लग गया है, बट इट डजेंट मीन कि आपके ब्रेन को कुछ हुआ। इट्स जस्ट लाइक ए हेलमेट, एक हेलमेट की तरह काम करती है। और ये जो रिब्स आप देख रहे हो,
एक रिब केज पिंजरे की तरह इसमें हमारा हार्ट और हमारे लंग्स भी कवर कर रखे हैं। सो नाउ जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या होते हैं बेटे, जहाँ पे टू बोन्स आपस में मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। आपका रिस्ट जॉइंट है, आपके यहाँ पे देखिए एंकल जॉइंट ये आप देख सकते हो, नी का जॉइंट आप देख सकते हो, रिस्ट जॉइंट आप देख सकते हो, एल्बो जॉइंट, नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। देख रहे हो कितने जॉइंट्स हैं, ये देखिए नेक, तभी तो मूव कर पाते हो नेक को, शोल्डर तभी तो ऊपर नीचे कंधे को झुका उठा सकते हो, हाथ को नीचे, एल्बो का देखिए, देन आपकी बैकबोन में जॉइंट है, झुककर किसी चीज़ को उठाना, फिर सीधे होना, फिर आपकी कलाई का जॉइंट है, फिर आपके घुटनों का, और एंकल। सो दीज आर द डिफरेंट जॉइंट जो मिलकर क्या करते हैं, हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। देन मस्कुलर सिस्टम, सभी मसल्स मिलकर क्या बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम। और मसल्स अटैच हैं हमारी बोन्स की, बोन से, तभी हम मूव कर पाते हैं। अगर खाली बोन्स होती तो शायद हम मूव नहीं कर पाते। तो मसल्स बेटे किस तरह के होते हैं, एक जस्ट लाइक ए रबड़ बैंड, बहुत इलास्टिक टिश्यू के बने होते हैं, इसीलिए हम अपनी बॉडी को ईजिली मूव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, सो रीड इट केयरफुली एंड लर्न द अंडरलाइन वर्ड्स। इसको ध्यान से पढ़िए कि मैम ने बार बार अंडरलाइन क्यों किया है, ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स में भी आते हैं और इंटरनल आंसर्स में भी आएंगे। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।